अच्छा, now everyone, यहाँ पे बस खामोश खामोश. So this right here is what? बैठ जाओ बेटा. So this right here is question number 23. Question number 23 says figure 3.1 shows a student rubbing their hands together. State the main energy conversion. So yes, the main energy conversion is kinetic to thermal because you are moving your hands, so essentially they have kinetic energy and that's converting to heat or thermal. दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. सही है. So heat or thermal is fine. बैठ जाओ बैठ जाओ. Now state why the hands become even warmer. Yes, so state why hands become even warmer if they are pressed harder together. बेटा जल्दी बैठ जाओ. जल्दी 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 जल्दी. State why hands become even warmer if they are pressed harder together by rubbing. When rubbing, so yes, the correct answer would be K. A larger friction force leads to larger energy loss. ठीक है. अगेन अब यहाँ पे अब यू व्हाट यू नीड टू गिव इज बेटा बैठ जाओ बातें नहीं करो. So the idea that you need to put forward is the fact कि भाई अगर आप if you rub your hands against each other faster, that's going to increase the friction and more kinetic energy will be converted to thermal energy. So instead of energy loss, we are going to say leads to larger energy conversion. क्योंकि यहाँ पे technically energy is not lost. ठीक है. All right. बेटा जल्दी लिखो लिखो. नहीं लिखो बेटा जल्दी लिखो. रजिस्टर निकालो जल्दी बेटा. रजिस्टर रजिस्टर. अच्छा, then we have part C. Then we have part C. बेटा बस रजिस्टर कहाँ है हैदर. बाद में कॉपी कर लेना, अभी उसको दो. All right, so the average force used to slide one hand along the other is 1.2 newtons. In each movement, one hand moves 0.08 meters, the other hand remains stationary. Calculate the number of movements needed to complete 2 joules of work to be done. The work done in one movement कितना होगा? How do you figure out work done? Work done का formula क्या है? Force into, rather say displacement than distance. So work done is equals to force into displacement. So when you move your hands against each other once, that's going to be what? Force kitna hai? That's 1.2 into distance kitna hai? That's 0.08. So that's going to be equals to 0.096 joules. Take care. This right here is going to be what? This right here is going to be 0.096 joules. And here 0.096 joules ki energy leads to only one. So only one hand movement gives you an energy or a heat energy of 0.096 joules. तो अब हम क्या करेंगे? Divide कर देंगे, proportions use करेंगे, either one is fine. So you're going to say that one hand movement gives you 0.096 joules of energy. So n hand movements are going to give you 2 joules of energy. सही है? So cross multiplying that, what do you get? x की वैल्यू n की वैल्यू निकालो जल्दी. n की वैल्यू कितनी है? कैलकुलेटर से फिगर आउट कीजिए बेटा जल्दी. अरे नहीं बेटा, इट्स गोइंग टू बी 2 डिवाइड बाय 0.096. डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 20.8. Now, instead of saying 20.8, अब जाहिर सी बात है practically it's not possible to measure के 0.8 वाली movement कहाँ पर आएगी. So we are going to round that off to what? Yes, we are going to round that off to 21 hand movements. So when you move your hand against each other 21 times, तो automatically आपकी जो energy release होगी वो कितनी हो जाएगी? That's going to be 2 joules. All right? ये कहानी clear है? यहाँ तक क्लियर है सबको? All right, next. Each movement takes 0.2 seconds. Calculate the average power developed. तो अगर
पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम. तो एक मूवमेंट से कितना वर्क डन है? दैट 0.096. When you make one movement, तो कितनी एनर्जी है? That's 0.096 divided by the time required. So that's going to be 0.48 watts. Come again? No, so you're rubbing one hand against each the other, right? So this is one movement, and then back again is another. You're going to do this 21 times. सही है. And अब one hand movement gives you 0.096 joules of energy. बेटा घर पे जाके करना. हाँ सही है. So this right here, when you move your hand once, that gives you 0.096 joules of energy. और इसमें टाइम कितना लगा? 0.2 seconds लगा. तो पावर जनरेटेड इज व्हाट? एनर्जी अपॉन टाइम. तो ये सही कि भाई कितनी एनर्जी? 0.096 एनर्जी. कितने टाइम में? 0.2 seconds में. तो इन 1 second इट्स गोना गिव यू 0.48 watts. ठीक है, ये गाने क्लियर है? ऑलराइट. Moving on to question number 24. Question number 24 is figure 10.1 shows a car braking system. The brake fluid is an oily liquid. The brake drum rotates with the wheel of the car. Explain how pushing the brake pedal makes the brake shoes rub against the drum. तो यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक का कॉन्सेप्ट है. सही है. और वो हाइड्रोलिक का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड जो है वो फोर्स आगे क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा. इट्स गोइंग टू ट्रांसफर द फोर्स अहेड. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन. नहीं है बट आगे का क्वेश्चन का वो रेलेवेंट है तो एक कर लेते हैं. मुझसे थोड़ी पूछ के निकाला. यस. सो नहीं, प्रेशर मल्टीप्लाई होगा वो एक डिफरेंट स्टोरी है. बट द पॉइंट ओवर हियर इज वेरी सिंपल. यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द पेडल, क्योंकि वो पिवट के ऊपर है. इट्स गोइंग टू मूव क्लॉकवाइज एंड दिस एंड इज ऑल्सो गोइंग टू मूव क्लॉकवाइज, अप्लाइंग अ फोर्स टू द राइट. ये पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगेगा एंड जो ये पिस्टन के ऊपर फोर्स होगा वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा ऑल द वे टिल द स्लेव पिस्टन्स. एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी. यस, थैंक यू. तो अब ये स्लेव पिस्टन्स जो है विल नाउ मूव आउटवर्ड्स प्रेसिंग these brake shoes against the drum. So yeah, so that's exactly what you're going to write over here. Explain how pushing the pedal makes the brake shoes rub against the drum. So force applied on master piston is transferred to slave pistons because liquids are incompressible. सही है. एंड फिर आगे अगर आपको डिटेल ऐड करनी है या नहीं करनी वो आपकी मर्जी है, बट मेरे ख्याल में ऐड कर दो तो बेहतर है. एंड स्लेव पिस्टन्स push the brake shoes towards the drum. बेटा अगर मैं यहाँ पे स्टार लिख के और फिर 3-4 लाइन है यहाँ पे एंड पे भी लिखूँ ना, यहाँ पे कहीं स्टार बना के लिखूँ तब भी वो चेक होगा. यस. लाइंस के अलावा लिखने से कोई ना मार्क्स कटेंगे ना कुछ होगा. आप जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्टार लिख के बोलते हो कि यार पेज 10 के ऊपर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसका आंसर, वो पेज 10 पे जाएगा, उसका आंसर पढ़ेगा और फिर आपको मार्क्स देगा. यस. मशीन चेक किसने बोला? अबे सिर्फ एमसीक्यूज मशीन चेक करती है, बाकी तो एग्जामिनर्स चेक करते हैं बेटा. अबे नहीं, मशीन को कैसे पता कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है? इट्स टेक्स्ट. नहीं नहीं नहीं, फजूल है. स्कैन होता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका स्कैन होता है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं रेलेवेंट वो स्कैन होके एक एग्जामिनर के सामने जाते हैं. एग्जामिनर चेक करता है उसको सही है या गलत है. अब एक एग्जामिनर है वो सिर्फ सारे क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेगा, तो उसके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के रेलेवेंट जितने भी हैं वो स्कैन होके वो उसके पास जाते हैं.
एंड अगर लाइन से ऊपर है, लाइन के नीचे है, कहीं और कंटिन्यूड है, तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वहाँ पे जाके चेक करें और देखें कि भाई बच्चे ने कहीं और लिखा है कि नहीं लिखा. बट दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कहीं और कंटिन्यू कर रहे हो तो आप एक्चुअली उसको मार्क करो कि आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो. बेहतर ये है कि आप लाइंस के अंदर लिखें, बट समटाइम्स क्वेश्चन की जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो जगह नहीं है, तो आप लाइन के नीचे अगर इस तरह से लिख लें, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इसका कोई मार्क कटेगा नहीं और ये रेलेवेंट है, ये चेक होगा. नहीं नहीं, फिजिक्स के अंदर अलाउड है, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता. ठीक है. अच्छा, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मास्टर पिस्टन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड. अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन इज अप्लाइड. कैलकुलेट द प्रेशर. तो प्रेशर क्या है? P is equals to F upon A. F कितना है? That's 140 newtons. Area कितना है? That's 2 centimeter squared. So this right here is going to be 70 newtons per centimeter squared ही आपका यूनिट होगा. यहाँ पर आपका आंसर 70 होगा. ठीक है. Now Pascals would be wrong. Pascals would be wrong. Why? क्योंकि Pascals is फोर्स अपॉन एरिया, जहाँ पे फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर्ड होता है. यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर्ड है. ठीक है. तो इवन अब क्योंकि आगे यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, तो आप इसको पास्कल में फोर्सिबली कन्वर्ट नहीं करेंगे, फ़ायदा नहीं है. आप आंसर जो है वो न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर्ड में ही दोगे. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा होता कि आपको आंसर पास्कल्स में देना है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? वेरी सिंपल. 70 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर्ड है, राइट. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100. अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डिवाइड बाय 100 दो बार करेंगे, सो दैट्स डिवाइड बाय 10,000. डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो वो एक्चुअली न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस सेम 70 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर्ड इज 70,000 पास्कल, 700,000 पास्कल्स. मल्टीप्लाइड बाय 10,000 हो जाएगा, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज 700 पास्कल्स. यहाँ पे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, तो यू आर गोइंग टू कीप इट एट 70. आप अपनी मर्जी से यूनिट्स चेंज नहीं कर सकते. अगर क्वेश्चन ने बोला है कि न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर दो, यू आर गोइंग टू आंसर इन न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यू आर नॉट गोना चेंज दैट. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ठीक है. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच स्लेव पिस्टन इज 2.8. कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड. अब जो प्रेशर आगे से ट्रांसफर हुआ है वो सेम प्रेशर लगेगा स्लेव पिस्टन के ऊपर. So the slave piston has a pressure of 70 newtons per meter squared. Force upon area, तो area cross multiply हो जाएगा. Force is going to be equals to pressure, which is 70 into area, which is 2.8. So 196 pascals हो जाएगा. Yes. I'm sorry, newtons per centimeter squared. अब यहाँ पे आपको यूनिट लिखना होगा. फोर्स है तो yes, it's going to be newtons. So यहाँ पे यूनिट लिखना होगा. My bad. ठीक है. अच्छा, the force exerted on the master piston is greater than the force applied by the foot on the brake pedal using principle of moments. Explain this. मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यार यहाँ पे जो पेडल के ऊपर जो फोर्स आप लगा रहे हो, सो दिस फोर्स ओवर हियर ऑन द पेडल दैट यू आर अप्लाइंग इज, यहाँ पे जो पिस्टन पे फोर्स लग रहा है वो बड़ा है, यहाँ पे जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कम है. तो वी नीड टू एक्सप्लेन वाई. तो उसका आंसर बहुत सिंपल है. मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो क्या होता है? दैट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस. हमजा, मोमेंट जो है वो क्या होता है? दैट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस. नाउ अगर इट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस, बेटा ये कौन है? क्या हो गया? सोना है तो बेटा घर पे रह के सोया करो. यहाँ पे काम, यहाँ पर आ रहे हो तो काम तो करना पड़ेगा. सो फोर्स इनटू डिस्टेंस. नाउ फोर्स जो है एंड डिस्टेंस जो है उनका रिलेशन क्या है? व्हाट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस? व्हाट्स द रिलेशन? डायरेक्ट और इनवर्स? जब भी दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगे तो यस, इट्स गोइंग टू बी एन इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर आपका सेंटर से डिस्टेंस कम हो जाएगा देन रिक्वायर्ड फोर्स इज गोइंग टू बी मोर. अगर मैं ब्रेक पेडल और सेंटर का डिस्टेंस देखूं, एंड इफ आई लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रेक पेडल एंड द पिस्टन, which डिस्टेंस इज लार्जर? ब्रेक पेडल और फुट का जो डिस्टेंस है वो बड़ा है, तो उस पर फोर्स जो है वो कम अप्लाई किया जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द पिस्टन, तो वो डिस्टेंस कम है. तो मीन्स अगर डिस्टेंस कम है तो ऑटोमेटिकली फोर्स एम्पलीफाई होकर ज़्यादा हो जाएगा. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? सो एसेंशियली दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव अ लार्जर फोर्स. क्या हुआ? क्या कौन है?
सो बेटा दरवाजा बंद करो. So essentially, force exerted on the master piston is greater than the force applied on the foot by the brake pedal. तो उसका simple सा reason ये है कि force is inversely proportional to distance. Hence, for moments to be equal, hence for moment as in turn effect on pedal and the piston to be equal, the piston is a smaller distance from the pivot, hence a larger force is applied. ज़रूरत से ज़्यादा लिखा है बट खैर हो गई. समटाइम्स इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर लें ज़्यादा बेहतर है. यू डोंट नो विच पार्ट. एग्जामिनर जो है वो बेनिफिट आउट ऑफ दैट देते हैं. इट्स अ मिसकंसेप्शन के एग्जामिनर जो है वो ढूंढ रहा होता है पॉइंट्स आपके मार्क्स काटने के लिए. इट्स एक्चुअली द अदर वे राउंड. एग्जामिनर कोशिश करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाए. सही है. तो दे गिव यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि ठीक है अगर बच्चा ये कहना चाह रहा है तो मे बी दे मीन दिस एंड इवेंचुअली दैट लीड्स टू द करेक्ट कंक्लूजन. तो उसको उसके मार्क्स जो है वो देते हैं एक्चुअली स्टूडेंट्स को. सही है. तो आपको यहाँ पे एक सो you're given a perception of the examiner that the examiner is out there to cut your marks as much as possible, to make you lose as many points as possible. It's the other way around. यहाँ पर teachers का आई डोंट नो कि बाकी टीचर्स जो आप लोग पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से है, बट यहाँ पे एक इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि यार ये गलती करी तो ये मार्क्स कट जाएगा, ये गलती करी ये मार्क्स कट जाएगा. मार्क्स कटने की बात ज़्यादा होती है जनरली स्पीकिंग. तो इट गिव्स एन इम्प्रेशन के एवरी एग्जामिनर इज आउट देयर योर एनिमी एंड दे वांट टू कट एज मैनी मार्क्स एज पॉसिबल. इट्स एक्चुअली द अदर वे राउंड. ठीक है. दे ट्राई टू गिव एज मैनी पॉइंट्स एज पॉसिबल. यस. नहीं ना, डिस्टेंस के साथ फोर्स कम होता है. आप दरवाज़ा जो है हैंडल से खोलने की कोशिश करो, आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है. अगर दरवाज़ा ऑपोजिट एंड से खोलने की कोशिश करो तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग. मोमेंट इंक्रीज होता है, टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, फोर्स इंक्रीज नहीं होता. ठीक है. तो नाउ एक सेकेंड, think about it like this. Think about it like this. Let's say, for example, over here, the force is 70 newtons. You are applying a force of what? You are applying a force of 70 newtons. And this right here is a distance of 10 centimeters away. आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कितना है? 70 सेंटीमीटर्स है. 10 न्यूटन 70 न्यूटन्स है 10 सेंटीमीटर्स अवे. तो यहाँ पे मोमेंट कितना हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी 70 इंटू 10 या 0.1 कर देंगे. तो दैट्स इक्वल्स टू 7 न्यूटन मीटर्स. अग्रीड. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका पिवट जो है वो पिस्टन जो है वो पिवट से 5 सेंटीमीटर्स दूर है. नाउ यहाँ पे जो आपने टर्निंग इफेक्ट अप्लाई किया है 7 न्यूटन मीटर्स का फ्रॉम द फुट, that same 7 newtons per meter, 7 newton meters is going to be applied on the piston. तो पिस्टन के ऊपर कितना है? 7 न्यूटन्स पर मीटर है, 7 न्यूटन मीटर्स है. सही है. फोर्स कितना लगेगा हमें नहीं पता. डिस्टेंस कितना है? 0.05, मतलब 5 सेंटीमीटर्स अवे है. तो F is going to be 7 divided by 0.05 which is going to be equals to 140 न्यूटन्स. तो एसेंशली अगर आप देखो यहाँ पे तो मच ईजियर वे टू अंडरस्टैंड दिस इज कि यार अगर आपका डिस्टेंस आधा हो गया तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी सी ओवर हियर. 70 न्यूटन्स था, 10 सेंटीमीटर्स था. 10 सेंटीमीटर्स हाफ होके 5 सेंटीमीटर्स बन गया तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. F इंटू डी इज इक्वल्स टू F इंटू डी. यस. तो अगेन बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा. अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू लुक एट इट एसेंशली. तो ये आपका आंसर होगा. नाउ पार्ट सी. Figure 10.2 shows a master cylinder sealed at one end. Instead of brake fluid, the cylinder contains air. So this time it's different. अब आपका brake fluid नहीं है, you have air, so it can be compressed.
When a force is applied to the piston, the length d changes from 6 centimeters to 4 centimeters. The pressure of air increases but the temperature stays constant. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर आप जो है वो वॉल्यूम जो है वो आप चेंज कर रहे हो, द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेज. Yeah, this is Boyle's law, yes. Describe how the molecules of air exert a pressure. तो air जो है molecules of air, नहीं, it's a more general question कि भाई molecules of air apply pressure how? By colliding with the walls of the container. सही है ना? So अब ये पूरा लिखना नहीं है, तो you can just answer by colliding with the walls of the container. सही है. So by colliding with the walls of the container. Explain why the pressure increases even though the temperature stays constant. सही है. तो pressure जो है वो because it's related to collisions with the wall of the container, तो वो जाहिर सी बात है pressure बढ़ने के लिए there has to be an increase in the number of collisions, right? अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई number of collisions increase actually होगी. तो आप एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये दे सकते हो कि क्योंकि आपका पिस्टन करीब आ गया, आपका वॉल्यूम कम हो गया. यू कैन से नंबर 1, volume is inversely proportional to pressure. सही है. Volume is decreasing, yes, hence pressure increases. बताता हूँ. नहीं, एक सेकेंड. Now, अगर आप ऊपर देखो तो essentially what the question is saying that the length d changes from what? From d is equals to 6. तो यहाँ पे ये 6 centimeters है to d is equals to 4. मतलब आपका piston जो है वो काफ़ी करीब आ गया है. And now the new d is what? That's 4 centimeters. तो जाहिर सी बात है if your piston is closing in, अगर आपका piston जो है वो करीब आ गया है तो that's going to result in a decrease in volume. तो एक तो आप ये कह सकते हो. बट अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट एक्सप्लेन इट, एलैबोरेट इट ऑन द सेम पॉइंट, तो आप collisions में भी डिस्क्राइब कर सकते हो. तो collisions में आप क्या डिस्क्राइब करोगे? यू कैन से दैट particles, more collisions how? So you are going to say particles now have a smaller surface to collide with. जी. Explain why the pressure increases even though the temperature stays constant. यहाँ पे 2 points होने चाहिए. हम मार्क करो, अलग अलग नहीं करो तब भी खैर होगी, मसला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मार्क कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. जस्ट leaves a better impression on the examiner, makes them easy to see कि भाई आप लिखना क्या चाह रहे हैं. ठीक है. सो पार्टिकल्स नाउ हैव अ स्मॉलर सरफेस टू कोलाइड विद. आपका सरफेस एरिया कम हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर और एरिया क्या है? अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो आपका प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. यू कैन थिंक अबाउट इट दिस वे और यू कैन थिंक अबाउट इट दिस वे के पार्टिकल्स नाउ हैव अ स्मॉलर सरफेस टू कोलाइड विद. मतलब पहले अगर बड़ा सरफेस था तो पार्टिकल्स यहाँ पे भी कोलाइड कर रहे थे, यहाँ पे भी कोलाइड कर रहे थे. अब आपका सरफेस एरिया जो कम हो गया तो आप सिर्फ यहाँ पे पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं. चाहिए. सो द पार्टिकल्स आर नाउ गोइंग टू कोलाइड मोर ऑफ्टन. आप इस तरह से भी सोच सकते हो. यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट दिस वे कि यार आपकी एक वॉल यहाँ पर है, एक वॉल यहाँ पर है. लेट्स से फॉर एग्जांपल द पार्टिकल इट ट्रैवल्स फ्रॉम हियर एंड देन बैक एंड कोलाइड्स विद द सेम वॉल अगेन. इसमें लेट्स अज्यूम टाइम लग रहा है टी. कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है. आपने क्या किया? आपने ये वाली वॉल को करीब ले आए. अब पार्टिकल यहाँ से वापस आएगा तो उसमें टाइम क्या हो जाएगा? कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा? It's going to take a smaller amount of time, and if it takes a smaller amount of time, then of course it's going to collide more. सही है. तो again both of these points relate to the same idea कि particles now collide with a smaller surface and उसकी वजह से that increases the number of collision. That increases number of collisions. सही है. ये गाने क्लियर है?
अच्छा, the initial pressure of the air inside the cylinder is 1 into 10 raised power 5 pascals. Calculate the final pressure of the air. State the formula that you use in your calculation. ठीक है. So in this case, what do we have? जो आपने Boyle's law बताया था कि Boyle's law क्या है? Boyle's law is P1 V1 is equals to P2 V2. All right. So P1 V1 is equals to P2 V2. So in this case, what are we going to do? P1 जो है वो तो 1 into 10 raised power 5 है. जाओ जाओ. लेकिन अगली बार के लिए याद रखना, नहीं जाने दूंगा. अच्छा, now you have 1 into 10 raised power 5 pascals. ठीक है. So in this case, what do we do? क्या करेंगे? Multiply by volume. Volume तो है नहीं. लेकिन what we can do is, we know that the surface area is 2 and we know that this length is, तो आपका pi r square आपको पता है, the volume of a cylinder is pi r square h. You know pi r square h से multiply करते हैं, जो d है वो essentially h है यहाँ पे. So it's going to be 2 times 6. All right. So the initial volume is what? 2 times 6, which is 12. आपका सिलेंडर है बेटा. सिलेंडर में जो आपके पास वॉल्यूम है वो क्या होगा? दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी योर वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फॉर्मूला इज व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच. आपको वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है. पिस्टन सर्कुलर होते हैं तो आपको पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है. पिस्टन कभी देखा है? तो पिस्टन क्या होता है? सर्कल होता है ना. पिस्टन का जो सरफेस होता है वो सर्कल होता है. अगर मैं ये वाले सरफेस की बात करूं तो ये वाला सरफेस जो है वो क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी अ सर्कल. नहीं बेटा, क्या हो गया? 6 जो है वो तो आपकी हाइट है ना. आपके पास सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? तो इट्स गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द हाइट एच. अब आपको जो सरफेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड. आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 6 जो आपकी हाइट है. अरे पाई आर स्क्वायर पूरा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना. आपको ये जो सर्कल है, दिस सर्कल राइट हियर जो मैं शेड कर रहा हूँ, आपको इस पूरे सर्कल का एरिया दिया हुआ है. दिस इज पाई आर स्क्वायर. तो अगर आपके पास सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच है तो जो पाई आर स्क्वायर है वो क्या बन जाता है? वो 2 बन जाएगा और एच जो है वो डी बन जाएगा. तो आपका 12 आना चाहिए वॉल्यूम. डज दैट मेक सेंस नाउ? ठीक है. ऑल राइट. सो इनिशियल पहला वॉल्यूम ये है. दूसरा प्रेशर निकालना है आपको. दूसरा वॉल्यूम क्या होगा? दिस टाइम द डी हैज चेंज्ड. द सरफेस एरिया इज स्टिल द सेम. द डी इज नाउ 4. बता रहा है ना अबे यार, एक तो तुम लोग क्वेश्चन भूल जाते हो. बोल रहा है ना कि 6 से लेके 4 चला गया. सो इन दिस केस व्हाट डू वी हैव? वी हैव P2 इज इक्वल टू 2 into 4. तो ये तो कैंसिल हो गया. So you've got 1 into 10 raised power 5 into 6 divided by 4. In that case, P2 is going to be equals to 150,000 pascals. Pressure is inversely proportional to volume given that temperature remains constant. That's fine. 150 kPa भी लिख सकते हो. ठीक है. All right. D. So D क्या कह रहा है? D says air bubbles form in the brake fluid of figure 10.1. State the effect this has on the braking system. Braking system पे क्या effect होना चाहिए? अब एयर बबल से क्या फ़र्क पड़ेगा? एयर बबल से फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका जो फोर्स है वो बीच में एयर बबल्स को भी कंप्रेस करना शुरू कर देगा. नाउ इफ़ योर फोर्स अप्लाइड ऑन द मास्टर सिलेंडर, वो आगे ट्रांसफ़र होना चाहिए कहाँ पे? स्लेव सिलेंडर पे. बट वो बीच में जो है वो क्या करना शुरू कर देगा? इट्स गोइंग टू स्टार्ट कंप्रेसिंग द बबल्स एज वेल. सो यू आर गोइंग टू लूज सम अमाउंट ऑफ फोर्स. ठीक है. कुछ फोर्स जो आगे स्लेव सिलेंडर में ट्रांसमिट होना चाहिए था वो कहाँ चला जाएगा? वो आप बबल्स को कंप्रेस कर रहा है. तो आपका कुछ फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. एंड दैट्स गोइंग टू डिक्रीज द ब्रेकिंग फोर्स, द ओवरऑल ब्रेकिंग फोर्स इन द सिस्टम. सही है. तो स्टेट द इफेक्ट दिस हैज ऑन ब्रेकिंग सिस्टम. तो आप सिंपली लिख देंगे डिक्रीजेस ब्रेकिंग फोर्स. खत्म कहानी.
What are you going to write? You are going to write that it decreases the braking force, and that's it. Now interestingly enough, अगर आप देखो तो यहाँ पे you can see कि यार यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा है, बट यहाँ पे इतनी लंबी आपको स्पेस दी हुई है आंसर करने के लिए. ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर जहाँ पर आपके क्वेश्चन के पॉइंट्स जो है वो लंबे हैं, वहाँ पर आपके पास जगह रिलेटिवली इतनी नहीं है. सो इट डजेंट रियली मैटर कि आपके पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी है. सम पीपल थिंक ज़्यादा लाइंस हैं तो आपको ज़्यादा बड़ा आंसर लिखना है, तो वो कोशिश करते हैं कि आंसर जो है वो स्ट्रेच करें, वो उसमें बीच में कुछ गलती कर देते हैं, कुछ गड़बड़ लिख देते हैं, एंड दैट लीड्स टू पीनलाइजिंग ऑफ पॉइंट्स. तो अगेन नंबर ऑफ लाइंस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. जितनी भी नंबर ऑफ लाइन्स हो, आप फोकस करो कि आपका आंसर क्या है. ठीक है, बी एज प्रिसाइज एंड बी एज टू द पॉइंट एज पॉसिबल, अनलेस यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग. एक्सप्लेन के क्वेश्चंस के अंदर लंबी करनी होती है. जो स्टेट और जो डिस्क्राइब के क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू स्टे टू द पॉइंट एंड दैट्स इट. यू डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? किस पे नहीं लगेगा? नहीं 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 नहीं. सो अगेन जो आपका पिस्टन है वो तो इस पूरे एरिया के ऊपर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा ना, वो इस पूरे एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. अब बबल्स जो है वो सिस्टम के अंदर यहाँ पर कहीं पे भी हो सकते हैं, वो सरफेस के ऊपर भी कहीं हो सकते हैं, और दैट डजेंट मीन कि सम ऑफ द प्रेशर इज गोइंग टू बी लॉस्ट. प्रेशर इज स्टिल गोइंग टू बी द सेम, बट some of the force is going to be technically दोनों, both the pressure and the force are going to be lost. Some amount is going to be lost. सही है ना? मतलब मैं ए में अभी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो ए ने जो है, क्योंकि वो वीडियो पता नहीं करप्ट हो गई थी मेरा, वो ब्लू स्क्रीन आ गई थी, एरर आ गया था, बट दे वर सेइंग कि आपका फोर्स जो है वो ब्रेक लगने में टाइम लगेगा. सो दैट्स रॉन्ग. ऑल राइट, ब्रेक लगने में देर इजंट गोइंग टू बी एनी डिले. ठीक है, देर इजंट गोइंग टू बी एनी डिले. ऑल देर इज गोइंग टू बी इज देर इज गोइंग टू बी एन ओवरऑल डिक्रीज इन द फोर्स. डज दैट मेक सेंस? तो या ब्रेकिंग फोर्स जो है, ब्रेकिंग इफेक्टिवनेस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगी. बहुत सारे रीजंस होते हैं. अगर आप फिल करते हुए जो है वो सही से सरफेस तक फिल नहीं करते, या एजिटेशन सही नहीं होती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. या आपका जो जिससे आप फिल कर रहे हो उस ब्रेक ऑयल के अंदर अगर लिक्विड्स के उसके अंदर एयर बबल्स हों, तो अगेन कुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. यू ब्लीड द सिस्टम, यू फिल इट अगेन, अकॉर्डिंग टू मी. मे बी एयर बबल्स को रिमूव करने का और कोई तरीका नहीं है. हाँ, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इंशाल्लाह. ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट क्लास टुमारो. आप लोगों का कल टेस्ट भी होगा, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर क्वेश्चंस टुमारो. हाँ, टेस्ट जो है वो 2 से लेके 13 तक अपलोड किया ना मैंने वीडियोस, तो 2 से लेके 13 तक कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, चलो बच्चा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.